اجالے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب کے ستارے اتر کے آئیں گے، قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب کے ستارے اتر کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے۔ بہت خوبصورت کلام، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ خطیب ملت حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ناس پہ تشریف فرما ہے، مداح رسول استاد الشورا حضرت احسانی صاحب صلی اللہ محمد رضا احسانی صاحب صلی اللہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب برکتیں بخشے۔ اور حضرات وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، جو میں گزارش کرتا ہوں جو فہرست میرے پاس میں آئی ہے اس میں سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اپنے وقت پہ چلنے کی انسان کوشش کا بشے کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بہتر اور پروگرام کی صحت کے لیے بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام تر میرے بھائی اپنے اپنے وقت پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات کو اختتام پذیر کرنے کی کوشش کا بشے کریں گے۔ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں تو صرف اور صرف ایک شعر سن لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک مداح ایک مہمان سے آپ لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں، دونوں کام پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر سپرد ہیں۔ ایک شعر سن لیجئے، کام بگڑا بہرحال وہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ بہت اچھے شعر کہنے والے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے شعر پڑھنا بہت دقت کی بات ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کشتی پار ہو جائے گی اگر ان کے انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ شعر سنیے گا، کام بگڑا بہرحال وہ بنا دیتے ہیں، تھوڑی سی جھنکار ای کو کم کر کے رکھیے گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی آواز رکھیے تاکہ میرے بھائیوں کے کانوں پہ گرا نہ گزرے۔ شعر سنیے گا، جہاں جہاں غوث پاک کے غلام وہاں سے سبحان اللہ کی آوازیں۔ شعر سنیے گا، کام بگڑا بہرحال وہ بنا دیتے ہیں، کام بگڑا بہرحال وہ بنا دیتے ہیں، جیسا مفلس رہے خوشحال بنا دیتے ہیں۔ تم میرے غوث کی عظمت کو کیا سمجھتے ہو، وہ تو چوروں کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں۔ تم میرے غوث کی عظمت کو کیا سمجھتے ہو، وہ تو چوروں کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں، وہ تو چوروں کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں۔ بغیر کسی لمحہ انتظار کے خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان مولانا گلفام رضا صاحب قادری کی آمد ہو رہی ہے۔ آئیے زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث الاعظم، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کچھ ہو گیا ہے گنبد خضرا کے آس پاس، کچھ ہو گیا ہے گنبد خضرا کے آس پاس، دل کھو گیا ہے گنبد خضرا کے آس پاس، پوچھے ہیں اس کی آنکھ سے آنسو حضور نے، جو رو گیا ہے ولی کرتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں، اور جو نبی کرتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کرامت نبی کے معجزے کا ایک پرتو ہوا کرتا ہے، اسی کام کو نبی کرے تو معجزہ ہے، اسی کام کو ولی کرے تو کرامت ہے۔ آئیے غوث اعظم کی شان کو بتائیں کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کے مقام کو بتاتے ہیں، غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ اگر غوث اعظم کی شان کو جانتا ہے، اگر غوث اعظم کے مقام کو جانتا ہے، غوث اعظم کی بلندی کو جانتا ہے، تو غوث اعظم کی شان کو جانتا ہے، تو آئیے نصیر الدین چراغ دہلوی سے پوچھیں کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ غوث اعظم کے مقام کو جانتا ہے تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے پوچھے کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ غوث اعظم کی بلندی کو جانتا ہے تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھے کہ غوث اعظم کی بلندی کیا ہے۔ غوث اعظم کی کرامت کو جانتا ہے تو بابا فری الدین گنج شکر سے پوچھے کہ غوث اعظم کی کرامت کیا ہے۔ غوث اعظم کا مقام کو، غوث اعظم کے مقام کو جانتا ہے تو غوث اعظم کے مقام کو جانتا ہے تو خواجہ غریب نواز سے پوچھے کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ غوث اعظم کی کرامت کو جانتا ہے تو خواجہ عثمان ہارون سے پوچھے، اے خواجہ عثمان ہارون غوث اعظم کی کرامت کیا ہے۔ غوث اعظم کی بلندی کو جانتا ہے تو غوث اعظم کی بلندی کو جاننے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم کرے کہ غوث اعظم کی بلندی کیا ہے۔ غوث اعظم کی کرامت کو جانتا ہے تو حضرت امام قیس رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے معلوم کرے کہ غوث اعظم کی کرامت کیا ہے۔ غوث اعظم کی کرامت کو جانتا ہے تو حضرت ابو سعید مخزومی سے پوچھے کہ غوث اعظم کی کرامت کیا ہے۔ اگر غوث اعظم کی کرامت کو جانتا ہے تو حضرت اویس قرنی کی بارگاہ
बारगाह में जाए और उनसे पूछे कि गौसे आजम की करामत क्या है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि गौसे आजम की शान को अगर जानना है तो बरेली के इमाम आला हजरत की बारगाह में पहुंच जाए, मालूम करे कि गौसे आजम की शान क्या है। गौसे आजम की बुलंदी को जानना है तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में पहुंचे और मालूम करे कि गौसे आजम की बुलंदी क्या है। रब्बे कायनात ने इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में दो आशिक रसूल ऐसे पैदा किए हैं जो दुनिया में मशहूर और मारूफ है। एक आशिक रसूल जो कोई तरफ में रहने वाला है उसको दुनिया वैसे करने के नाम से जानती है, और एक आशिक रसूल जो कि बरेली शरीफ की सरजमी पर रहता है जिसको दुनिया इमाम अहमद रजा आला हजरत के नाम से जानती है। आशिक रसूल हजरत वैसे करने का इश्क का आलम ये है, वैसे करने की मोहब्बत का आलम ये है, वैसे करने के प्यार का आलम ये है। जब कोई आका के शहर में जाता है, जब वहां से वापस होता है तो वैसे करने उससे दरियाफ्त करते हैं, उससे मालूम करते हैं, ऐ आने वाले मदीने से आने वाले, ये बता क्या तूने मेरे नबी को देखा है, या ये बता क्या तूने रहमतुल लिल आलमीन को देखा है। अगर तूने मेरे महबूब को देखा है तो बता उनका चेहरा कैसा है। अगर तूने मेरे महबूब को देखा है तो बता उनके गेशे मुबारक कैसे है। अगर तूने मेरे महबूब को देखा है तो बता उनके जुल्फ मुबारक कैसे है। ये बता अगर तूने मेरे महबूब को देखा है तो बता उनकी आंखें मुबारक कैसी है। वैसे करने की मोहब्बत का आलम ये है कि जाहिरी में आका को तो ना देखा, जाहिरी में आका का दीदार ना किया, लेकिन सब कुछ आका की बारगाह में कुर्बान कर दिया, आका की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वैसे करने की बारगाह में हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अली को भेजा अपना जुब्बा मुबारक लेकर, तो आका ने इरशाद फरमाया, हजरत अली से कहा, हजरत मौला अली से कहा है, हजरत उमर फारूक आजम से कहा है, जाओ मेरे महबूब मेरे आशिक वैसे करनी को दे देना, और हजरत वैसे करनी से कहना कि मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ कर दे, रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ कर दे मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए। तो वैसे करनी की बारगाह में जब हजरत उमर फारूक आजम आते हैं, जब हजरत अली आते हैं, अर्ज करते हैं वो वैसे करनी, आका ने ये जुब्बा मुबारक दिया है और इरशाद फरमाया है कि वो वैसे करनी से कहना मेरे महबूब की उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ कर दे। वो वैसे करनी ने रब्बे कायनात की हाथों बारगाह में हाथों को उठाया है, अर्ज किया है रब्बे कायनात मेरे महबूब की उम्मत को बख्शिश का परवाना दे दे, मेरे महबूब की उम्मत को बख्श दे। वो वैसे करनी हाथों को बारगाह खुदा में उठाए हुए हैं, निदा आती है आवाज आती है, आए वो वैसे करने मैंने तेरी दुआ से तेरे महबूब अपने महबूब की आधी उम्मत को बख्शिश का परवाना आदि उम्मत को बख्श दिया है। वो वैसे करनी अर्ज करते हैं रब्बे कायनात सिर्फ आदि उम्मत को बख्शिश का परवाना दिया है, सिर्फ आदि उम्मत ही बख्शी है। तो खुदा फरमाता है आए वो वैसे करनी अपने महबूब की आदि उम्मत को तेरी दुआ से बख्श दिया है, और आदि उम्मत को आने वाले अपने महबूब अब्दुल कादिर गौसे आजम की दुआ से बख्श। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम। क्या बात है गुलफाम भाई, वाह वाह। आदि उम्मत को गौसे आज़म की दुआ से बख्श दूंगा। ये आशिक रसूल हैं जो किकरन में रहते हैं, और दूसरे आशिक रसूल बरेली शरीफ की सरजमीन पर रहते हैं, जो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शान बयान करना चाहते हैं, जब कलम को उठाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तुझसे दर से सब से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में ही मेरी गर्दन में भी है जोर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सब है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और ए रज़ा यूं ना बिलक तो नहीं सैयद तो ना हो सैयदी सैयदी हर दहर है मौला तेरा, और फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा होश है और लाडला बेटा। बहुत नारे तकबीर, ऐसे खामोशी से नहीं बल्कि बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा होश है और लाडला बेटा तेरा। मैंने आपको बताया जो वली के हाथ से हो उसे करामत कहते हैं, जिसको नबी कहे उसे मोजज़ा कहते हैं। नबी के मोजज़े का परतो वली की करामत हुआ करती है, वली की करामत नबी के मोजज़े का एक परतो हुआ करती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
मेराज को गए थे, आका जब मेराज को तशरीफ ले गए थे तो बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, जंजीर हिलती रही। ये मौजज़ा है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। मौजज़ा क्या है कि जब मेराज को गए, वापस आए मेराज से, रास्ते में मुलाकातें भी हुई नबियों से, रब्बे कायनात से राज़ो न्याज़ की बातें भी हुई है। इतना समय लगा, तब भी बिस्तर गर्म था और जंजीर भी हिल रही थी। अब आइए करामत को सुने। हुजूर गौसे आज़म है, बगदाद की सरजमी है, बगदाद की सरजमी पर महफिल लगी हुई है, मजमा लगा हुआ है। गौसे आज़म बात बयान कर रहे थे, बात कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। और बात कौन सा था, बयान कौन सा था, तकरीर यही थी। गौसे आज़म इरशाद फरमा रहे थे, नबी के मेराज का वाक़या लोगों को सुना रहे थे। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब आका मेराज को गए थे, मेराज को तशरीफ ले गए थे, जब वापस आते हैं तो बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी। तो एक बदअकीदा उठता है, बदअकीदा उठने के बाद बोलता है, ऐ गौसे आज़म, आका जब मेराज को तशरीफ ले गए, वापस आए तो बिस्तर कैसे गर्म रहा होगा, जब वापस आए तो जंजीर कैसे हिलती रही होगी। जबकि आका जब मेराज को तशरीफ ले गए, नबियों से मुलाकातें भी की, रब्बे कायनात से मुलाकात की। जब रब्बे कायनात से मुलाकात करके वापस आ रहे थे, अपनी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज ला रहे थे। कितने वक्त की, कितने वक्त की, हाथों को उठा के बोलो कितने वक्त की, 50 वक्त की नमाज। आज हमसे 5 वक्त की नहीं पढ़ी जाती, 50 वक्त की पढ़ लेते 50 वक्त की। जब आका रब्बे कायनात की बारगाह से 50 वक्त की नमाज को ला रहे थे, रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं, अर्ज करते हैं, आका महबूब अपनी उम्मत के लिए कौन सा तोहफा लाए हैं, कौन सा इनाम लाए हैं। आका फरमाते हैं 50 वक्त की नमाज है। मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मूसा फरमाते हैं, आका ये बहुत है, थोड़ी कम कराइए। आका फिर बारगाह खुदाबंदी में पहुंचते हैं, रब्बे कायनात की बारगाह में पहुंचने के बाद में नमाजों को कम कराते हैं। कितनी नमाजों को कम कराते हैं, 5 वक्त की नमाजों को कम कराते हैं, 45 वक्त की नमाजों को लेकर आते हैं। फिर मूसा मिलते हैं, फिर मूसा कहते हैं, हुजूर ये बहुत है और कम कराइए। फिर आका जाते हैं 40 बजती है, फिर आका जाते हैं 35 बजती है, फिर आका जाते हैं 30 बजती है, फिर आका जाते हैं 25 बजती है, फिर आका जाते हैं 20 बाकी रह जाती है, फिर आका जाते हैं 15 बाकी रह जाती है, फिर आका जाते हैं 10 बाकी रह जाती है। इतनी मरतबा आका बार बार गए हैं। वो यहूदी कहता है, वो यहूदी खड़ा हो जाता है, कहता है इतनी मरतबा आका ने चक्कर लगाया है और आप बोल रहे हैं कि बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी, लिहाजा वो बदअकीदा महफिल से उठा है। उठने के बाद घर को रवाना हुआ है। रास्ते में उसने मछली को खरीदा, मछली को बनवाने के लिए मछली को खरीदा। घर में दाखिल होता है, अहल्या से कहता है, अपनी जोजा से कहता है, अपनी बीवी से कहता है, लो ये मछली है, इसको बनाओ, मैं दरिया में नहाने जा रहा हूँ, नहाकर वापस आ जाऊँ तो ये बन जानी चाहिए। वो इंसान मछली को देता है और नहाने के लिए दरिया में पहुंच जाता है। जैसे ही नहाने के लिए दरिया में कूदता है, जैसे ही गोता सन होता है, जैसे ही गोता लगाता है, गोता लगाने से पहले इंसान था, मर्द था, अच्छा खासा आदमी था गोता लगाने से पहले। जैसे ही वो गोता लगाता है, गोता सन होता है। जब गोता लगाया था तो आदमी था, गोता लगाने के बाद पट बाहर निकलता है, अब वो कोई आदमी ना रहा, अब वो कोई मर्द ना रहा, बल्कि एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की बन गया है, एक औरत बन गया है, एक लड़की बनकर दरिया से बाहर निकलता है। बरहाना लड़की है, बिल्कुल कपड़े नहीं है, बरहाना लड़की है। रास्ते से बादशाह का गुजर होता है, बादशाह देखता है एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की है, बरहाना है। उस बादशाह ने उस लड़की के लिए कपड़े भेजे हैं, लड़की को अपने साथ लिया और अपने साथ लेकर महल में पहुंच जाता है। महल में पहुंचने के बाद में वो बादशाह उस लड़की से शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है। शादी करने के बाद में उस लड़की से 7 बेटे पैदा होते हैं, 7 औलादें पैदा होती है, 7 औलादें उस लड़की से पैदा होती है। जब 7 औलादें पैदा हो जाती है, उसके बाद में वही लड़की उसी दरिया में नहाने के लिए आती है, अपनी सहेलियों के साथ दरिया में नहाने आती है। जैसे ही गोता सन होती है, जैसे ही गोता लगाती है, गोता लगाने के बाद जब दरिया से बाहर निकलती है तो क्या देखता है, वही मर्द था, वही आदमी था पहले वाला, अब कोई लड़की ना रहा। वो हैरान हो गया, हैरान होने के बाद में अपने घर को चला है। जैसे ही घर में
में दाखिल हुआ है तो क्या देखता है, वही मछली, जिंदा मछली जो कि पहले लाया था बनवाने के लिए। मछली तड़प रही है, बीवी बैठी है, गजबनाक हो जाता है, बीवी पर गुस्सा हो जाता है, कहता है तुमने अभी तक मछली ना बनाई है। उसकी बीवी कहती है मेरे शौहरे नामदार, अभी आपको गए हुए वक्त ही कितना गुजरा है, समय ही कितना गुजरा है। वो समझ जाता है, कहने लगता है चल ये कोई और माजरा है, चला मैं तुझे बताता हूँ। अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है, उसी महफिल में चला जाता है, उसी महफिल में जिसमें गौसे आज़म बयान फरमा रहे थे जब आका मेराज हो गए, जब वापस तशरीफ लाए तो जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। आका हुजूर गौसे आज़म बयान फरमा रहे थे। वो इंसान आता है महफिल में, आने के बाद कहता है हुजूर आपने सच कहा, आका जब मेराज हो गए बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी। अरे हुजूर जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। क्या बात है, माशाअल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ली ज़ंबी व मा अलैना इल्ला अल-बलाग।